Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students, this is class of physics for first year. In the previous lecture student we were discussing about the uncertainties. हम लोगों ने अनसर्टिनिटीज़ को डिफ़ाइन किया था. वी सेड दैट हमारी जो भी मेजरमेंट होगी उसमें जितना डाउट होगा उस डाउट को द क्वांटिफिकेशन ऑफ डाउट इन अ मेजरमेंट इज़ कॉल्ड एज अनसर्टिनिटी. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हम लोगों ने अनसर्टिनिटी को डिवाइड किया था इन द डिफरेंट क्लासेस. वी सेड वी हैव एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी, वी हैव रिलेटिव अनसर्टिनिटी, वी हैव परसेंटेज अनसर्टिनिटी. एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी को हम लोगों ने इस तरह से डिस्कस किया था. वी सेड दैट मोस्टली ये हमें मेजरमेंट के साथ गिवन होती है, और अगर ये आप लोगों को गिवन ना हो यू कैन एज्यूम इट टू बी इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस बाय द हेल्प ऑफ विच दैट मेजरमेंट वाज टेकन. रिलेटिव अनसर्टिनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, और हम लोगों ने कहा था एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू दिस गिव्स अस द relative uncertainty. And finally the percentage uncertainty was कि अगर आपके पास relative uncertainty है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास percentage uncertainty आ जाएगी. These formulas are very important in our topic of discussion for today. That's why I have mentioned these formulas on the board. You can see that the relative uncertainty in the measurement, this is equal to absolute uncertainty divided by measured value. You can find the relative uncertainty simply by dividing the absolute uncertainty by measured value. Secondly, the percentage uncertainty was what? It was nothing but the relative uncertainty multiplied by the 100%. And from the relative uncertainty you know that it is equal to absolute uncertainty divided by measured value. And if you multiply this fraction by 100 you will get percentage uncertainty. So you have to keep it in your mind, these two formulas, because these two formulas are going to use in our topic of discussion for today. Okay. As well as in a previous lecture we also studied about how to indicate uncertainty in the measurements. उसके लिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने रूल नंबर 1 देखा था जो हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए डिफ़ाइन किया था. हम लोगों ने ये कहा था अगर दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ भी ऐड हो जाती हैं, और हमें फाइनल रिज़ल्ट जो मिलता है दैट विल बी द समेशन ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ इन द गिवन फिज़िकल क्वांटिटीज़. और उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक असाइनमेंट का एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था. सो हियर आई हैव मेंशन्ड रूल नंबर 1. The rule number 1 is for addition and subtraction. Whenever two physical quantities are being added or they are being subtracted, the absolute uncertainties are always added. Today students we are going to discuss the second rule. The first rule was for addition and subtraction, but the second rule is for the multiplication and division. So rule number 2 is for multiplication and for division. So students, whenever two or more physical quantities are being multiplied or they are being divided, their percentage uncertainties are added, not absolute uncertainties. Here the percentage uncertainties are added. And for the rule number 1 where we have the case of addition and subtraction, the absolute uncertainties are added. So keep it in your mind the difference between these two. In the first case the absolute uncertainties are added, while in a second case the percentage uncertainties are added. सो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ कैसे एडअप हो जाती हैं, किस तरह से दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल, और इसको एग्जांपल के साथ हम लोग समझ लेते हैं. I have taken the exercise, the problem from your exercise. The problem is problem number 3.
प्रॉब्लम नंबर 3 में आप लोगों को एक शीट है, इस शीट की लेंथ और विड्थ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, और लेंथ में कितनी अनसर्टेनिटी है वो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, विड्थ में कितनी अनसर्टेनिटी है वो भी इंफॉर्मेशन गिवन है. You are asked to find out area of that sheet as well as uncertainty in area of that sheet. So what we are given length of sheet, and length of sheet is given along with absolute uncertainty. This del L is indicating what? It is indicating the absolute uncertainty. So I am given 1.50 plus minus 0.02, and this 0.02, this is actually what? It is actually the absolute uncertainty in the length. Secondly, I am given the width of sheet. The width of sheet is what? It is equal to 0.20 along with the uncertainty, and here 0.01 is actually the absolute uncertainty. Students, as I have mentioned in the previous lecture, and also you can see here that measured value में पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने ही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में भी पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं. यहाँ पे भी पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं गिवन वैल्यू में उतने ही अनसर्टेनिटी में पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दैट शीट. सो शीट में भी समवट लाइक इन दिस शेप, इस शेप में आपके पास कोई भी एक शीट है, इस शीट की लेंथ और विड्थ हमें गिवन है, हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट करना है. You can say that this much can be the length and this much can be the width. Okay, from your 8th class or from your 7th class, you know that the area, it is nothing but it is actually the product of length and width. So simply you are given the length 1.50 and you are given the width 0.20. You will simply multiply length with the width, you will get the area 0.3 meter squares along with the unit meter squares. Okay, now students, ये 0.3 क्या मेरे पास करेक्ट आंसर है या नहीं है? I have to go towards the rules of significant figure. जब हम लोग स्टूडेंट्स significant figures पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था rules on algebraic manipulations के जब फिज़िकल क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड होती हैं तब significant figures हम लोग कैसे लिखते हैं, और जब वो ऐड होती हैं और सब्ट्रैक्ट होती हैं तब हम लोग significant figures कैसे लिखते हैं. उन रूल्स में हम लोगों ने एक रूल फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम लोगों ने स्टडी किया था. यू कैन ऑल्सो सी दैट रूल फ्रॉम योर नोटबुक्स एज वेल एज फ्रॉम योर बुक. उस रूल में हम लोगों ने ये कहा था जब दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई होंगी उनकी मल्टीप्लिकेशन की वजह से जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा उस रिज़ल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने दो मल्टीप्लाई होने वाली फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में से सबसे कम जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. Okay, if I see over here I have in this value 1.50 I have 3 significant figures, while in the value 0.20 I have only 2 significant figures. So it means that my final result must contain 2 significant figures, because for this reading I have 2 significant figures and for this reading I have 3 significant figures. Okay, so अगर मैं यहाँ पे आप लोग कैलकुलेटर में ये वैल्यूज़ एंटर करके रिज़ल्ट निकालोगे तो कैलकुलेटर आपको 0.3 रिज़ल्ट देगा, बट बाय रूल you should know that you should have 2 significant figures. So how I can write it in the form of 2 significant figures? Simply I will put a 0 after 3 and I will write the area in this form 0.30. ये 0.30 में क्यों कन्वर्ट हुआ है? दिस इज़ ओनली ड्यू टू द रूल्स फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, नाउ वी हैव फाउंड हम लोगों ने एरिया जो है वो शीट का फाइंड कर लिया है. नाउ व्हाट वी आर रिक्वायरिंग द अनसर्टेनिटी इन दैट एरिया.
So for finding uncertainty in that area, I have to go towards rule number 2. Rule number 2 is for multiplication and division, and here I can see that length is being multiplied by width, and by their multiplication I am getting the area. So for this case, rule number 2 is applied, and rule number 2 says that percentage uncertainties are added. It means that कि एरिया में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ. सो एरिया में जो अनसर्टेनिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ. Now I have to find out percentage uncertainty in width as well as percentage uncertainty in length. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को फार्मूला बता दिया था. आप लोग उस फार्मूला की मदद से परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट्स गो दैट फार्मूला फॉर वंस. हम लोग उस फार्मूला को देख लेते हैं और फिर हम लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ फाइंड आउट कर लेते हैं. सो हियर आई हैव द फार्मूला रिटन. The percentage uncertainty is equal to absolute uncertainty divided by measured value multiplied by 100%. Absolute uncertainty divided by measured value multiplied by 100%. So let's come to here. I have to find out percentage uncertainty in width. So what will be the formula? The formula will be the absolute uncertainty in width divided by measured value of width multiplied by 100%. अब width में absolute uncertainty कितनी है, that is 0.01. So I have written 0.01 divided by measured value. Measured value is what, 0.20 divided by 0.20 and finally multiplied by the 100%. So this is the formula for finding percentage uncertainty in width, and percentage uncertainty in width, if you simplify this relation by the help of your calculator, you will find it equal to the 5%. Secondly, I have to find out percentage uncertainty in length. तो percentage uncertainty in length कैसे find out करेंगे, simply हम लोग वही relation use करेंगे, absolute uncertainty divided by measured value multiplied by 100%. So absolute uncertainty 0.02. Here I have mentioned that this is absolute uncertainty divided by measured value. Measured value is 1.50. Okay, multiply by 100%. So this relation gives you the percentage uncertainty in length, and this is equal to 1.33%. Now by rule, percentage uncertainty in area will be equal to percentage uncertainty in width plus percentage uncertainty in length. आप लोग सिंपली 5 को 1.33 में एड अप कर देंगे, यू विल गेट 6.33. सो हियर इट इज़ द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया. बट I have to find out absolute uncertainty in area, not percentage uncertainty in area. So इस percentage uncertainty को किसी तरीके से मैंने convert कर देना है absolute uncertainty में. So simply मैं वही formula use करूँगा, उसी को mathematically shuffle करूँगा और मेरे पास absolute uncertainty का formula आ जाएगा. Just look at here. Percentage uncertainty in area, this is equal to absolute uncertainty in area divided by measured value of area multiplied by 100%. आप अगर सिंपली इस a को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 100 को यहाँ पे डिवाइड कर दो, यू विल गेट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एरिया. सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एरिया दिस इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइड बाय 100%. परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया आप लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है, एरिया आप लोगों ने इससे प्रीवियसली यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हो, और डिवाइड बाय 100 इट इज़ अ कांस्टेंट. सो यू विल हैव दिस मच फ्रैक्शन विच यू नीड टू सॉल्व बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. जब कैलकुलेटर से आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोगों को फाइनली ये रिज़ल्ट मिलेगा. नाउ स्टूडेंट्स, keep it in your mind that since the uncertainties are doubt in the measurement, these gives us a range in which our actual value exists. So most of the times we round off the uncertainties to only one significant figures. So if I round off it up to one significant figure, here I have the first significant figure 1.
तो अगर आपने यहाँ तक राउंड ऑफ करना है तो आप लोग देख सकते हो 8 चूँकि 5 से ग्रेटर है, तो राउंडिंग ऑफ के रूल्स ये कहते हैं जब ड्रॉपिंग डिजिट 5 से ग्रेटर हो जाए तो लास्ट रिटेन डिजिट 1 से इंक्रीज़ कर जाता है। सो जब मैं यहाँ पे राउंड ऑफ करूँगा सो आई विल गेट हेयर 0.02। सो दिस इज़ द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन area. Now I have found out area of the sheet and absolute uncertainty in the area of sheet. So finally मैं अपना result लिखूँगा, this will my final result. Area along with the uncertainty in area, this is equal to 0.30 plus minus 0.02. Now students you can also see here पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं यहाँ पे भी पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट्स हैं। सो दिस इज़ द वे हाउ कैन आई सॉल्व एंड फाइंड आउट द अनसर्टेनिटीज व्हेन टू क्वांटिटीज़ आर बीइंग मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम था, बुक में सोल्यूशन नहीं है इसका, ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। बुक में एग्जांपल है 1.3 सॉल्व्ड एग्जांपल है। You have to work by yourself on that example and you have to find out same यही एग्जांपल है, उसमें जस्ट वैल्यूज चेंज हैं, आप लोगों ने एरिया ही फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज रूल नंबर 2। नाउ कम टू द रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये है जब आपके पास कोई फिज़िकल क्वांटिटी हो और उसकी पावर एग्जिस्ट कर रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग इससे पहले अपनी 9th-10th क्लास में फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम, टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वो फाइंड आउट करते रहे हो। फॉर्मूला वाज 1/2 पाई अंडर एल बाई जी और एम बाई के व्हाट्सएवर जो भी था। उसमें स्टूडेंट्स आप लोग अगर देखो तो अंडर रूट के अंदर दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आ रही थी, लेंथ डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मास डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट। तो वो अंडर रूट के अंदर आ रही थी, तो अंडर रूट की क्या वैल्यू होती है 1/2। इट मीन्स दैट वो एल बाई जी या वो एम बाई के उसकी होल पावर 1/2 आ रही थी। समवट लाइक इस तरह से था कि आप पास फार्मूला के अंदर इस तरह अंडर रूट में एल डिवाइडेड बाई जी आता था, तो आप लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हो एल डिवाइडेड बाई जी होल पावर 1/2। नाउ अगर मुझे किसी एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड या उसकी फ्रीक्वेंसी में अगर मुझे फाइंड आउट करनी हो अनसर्टेनिटी, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरे पास एल बाई जी डिवाइड भी हो रहे हैं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला रूल भी अप्लाई होगा। सेकेंडली यहाँ पे मैं देखूँ तो इन दोनों फिज़िकल क्वांटिटीज़ की कुछ पावर भी आ रही है, तो पावर के लिए मुझे एक और रूल देखना पड़ेगा एंड दैट इज़ द रूल नंबर 3। एंड रूल नंबर 3 इज़ पावर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, जब किसी फिज़िकल क्वांटिटी की पावर आपके पास आ जाए। ओके, इससे रिलेटेड आपकी बुक में है असाइनमेंट नंबर 1.4। मैं असाइनमेंट नंबर 1.4 को डिस्कस करूँगा और इसी से रिलेटेड एग्जांपल बुक में सॉल्व है। यू हैव टू वर्क आउट ऑन द एग्जांपल बाय योर सेल्फ। असाइनमेंट नंबर 1.4 में स्टूडेंट्स आप लोगों को एक स्फेरिकल बॉडी आप अपने माइंड में अज्यूम कर सकते हो, किसी एक फुटबॉल का या किसी एक टेनिस बॉल का। आप लोगों को रेडियस गिवन है अलॉन्ग विद अनसर्टेनिटी इन द रेडियस आप लोगों को गिवन है। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली वो जो स्फेरिकल बॉडी है उस स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सो हाउ वुड यू फाइंड द वॉल्यूम? Let's go through this example. Okay, we have to find out volume along with the uncertainty in the volume. I have the volume for spherical body. आप लोगों ने अपनी 8th क्लास में अपनी 9th क्लास में ये चीज़ स्टडी की होगी। वॉल्यूम ऑफ spherical body is equal to 4/3 pi r cube. So I will simply put the values 4/3, pi की वैल्यू 3.142 आप लोग पुट कर सकते हो, 22/7 पुट कर सकते हो, दैट इज़ योर ओन चॉइस। और रेडियस की जो वैल्यू आपको गिवन है 2.25 आप लोगों ने वो यहाँ पे पुट कर देनी है। सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस रिलेशन बाय द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर यू विल गेट द वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस मच 47.719125 सेंटीमीटर क्यूब। बट स्टूडेंट्स अगेन यू हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स।
In the rules of significant figures you have seen when the physical quantities are being multiplied, तो आप ये देखते हो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी में सबसे कम नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो आप काउंट करते हो कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, और फाइनल रिजल्ट में फिर आप लोग उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखते हो। Since here I know that 4 is constant, so I have not to concern with it. 3 is constant, इसके साथ भी मेरा कंसर्न नहीं रहेगा। Pi is also a constant, इसके साथ भी कंसर्न नहीं रहेगा। So I am left with only single physical quantity, that is radius, which is 2.25. तो इसमें मैं अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करूँ, मेरे पास सिर्फ एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो मेन जो अपने फाइनल रिजल्ट को राउंड ऑफ करना है वो थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ कर देना है। तो मैं देखूँ मेरे पास 4 फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर और ये 7 थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ करना है। तो मैंने देखना है 7 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है। अगर वो 5 से ग्रेटर है तो राउंडिंग ऑफ के रूल्स के अकॉर्डिंग 7 को 1 से इंक्रीज़ कर दूंगा। अगर वो 5 से लेस है तो राउंडिंग ऑफ के रूल्स के अकॉर्डिंग उसको एज इट इज़ रहने दूंगा। हेयर आई हैव 1 विच इज़ लेस दैन 5, सो ये 7 एज इट इज़ रहेगा और फाइनल मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 47.7 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ माई result for the volume of the sphere. Now I have to find out uncertainty in the volume, and for uncertainty in the volume I can see that यहाँ पे r की पावर में कोई चीज़ आ रही है, r की पावर में चीज़ आ रही है। So r की पावर में अगर चीज़ आ रही है तो मैंने पावर वाला रूल यूज देखना है, और पावर रूल से दैट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज़ मल्टीप्लाइड बाय द पावर। इसका मतलब ये हुआ वॉल्यूम में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस। सो 3 एज इट इज़। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का वही फार्मूला जो मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में आपको बताया था, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%. So this is the absolute uncertainty which is given to you, as I have told you most of the time it is given absolute uncertainty. Here this is the measured value, this is measured value. You divide absolute uncertainty and measured value and multiply with 100, you will get percentage uncertainty in R. Here I have put values, absolute uncertainty, this is the measured value, and this is multiplied by the 100%. So you if you simplify this fraction by the help of calculator, you will get the result 1.333. okay, ये तो मैंने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट की है। आई हैव टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो इससे पहले जो हम लोगों ने किया था वही हम लोग करेंगे। आई नो दैट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इसको मैं अगर रीशफल करूँ, मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस करूँ, v को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, 100 को इधर डिवाइड कर दूँ, आई विल गेट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम, and this will be equal to 1.33 multiplied by 47.7 divided by 100। और इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे you will get 0.634। as I have previously told you that uncertainties are just a doubt in a measurement, so we usually round off it to one significant figure. So I round off it to one significant figure. My first significant figure is 6। मैंने 6 के बाद देखना है, अगर 5 से ग्रेटर है तो 6 को 7 कर दूंगा, अगर 5 से लेस है तो 6 को एज इट इज़ रखूँगा। सिंस हेयर आई हैव 3 चूँकि 5 से लेस है तो मैं 6 को एज इट इज़ छोड़ दूंगा। आई विल गेट 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। सो फाइनली माई फाइनल रिजल्ट वुड बी 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। This is assignment number 4 that I had solved for you. इससे related example I think example number 1.4 है, इससे related, वो आप अपने बुक में देख सकते हैं, एंड वो भी बिल्कुल सेम इसी रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व की गई है। Inshallah students, in the next lecture we will discuss some of the problems from your exercise that are related to this topic, and furthermore we will discuss an
एक और रूल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप लैब में जाके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो वहाँ पे जब आपको अनसर्टनिटी मेंशन करने का कहा जाता है तो वो रूल वहाँ पे भी यूज़ होता है, एज़ वेल एज़ उस रूल से रिलेटेड कुछ हम लोग ईटा के MCQs को भी देखेंगे। आई रिकमेंड यू कि आप इस लेक्चर को एक दो बार दोबारा से सुन लें। अगर कोई भी किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन है यू कैन ओपनली आस्क फ्रॉम मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप्स। मेरे साथ मेरे कलीग्स भी अवेलेबल हैं, दे विल आल्सो हेल्प यू। Inshallah students, in the next lecture we will meet with a new topic and with some new problems. Till that, Allah Hafiz, thank you very much.